All right. So let's start with the experiment explanation of experiment number 1 of semester 1. The aim of the experiment, as you can see, there are, let's try to understand the aim first. It says to study the acid catalyzed hydrolysis of ester and determine its rate constant. The first thing is the reaction that you're going to do is you're going to hydrolyze an ester. Does anybody know what is the reaction of hydrolysis of ester? Does anybody know what is ester? Ester का formula क्या है, किसी को मालूम है? It is R, which can be any, RCOOR. This is called an ester. So this can be methyl and methyl, this can be ethyl and ethyl, this can be any combination. So wherever you have CH3CO OCH3, that's an ester. So you take an ester and you react it with water. So that is the name, hydrolysis of ester. Ester. Hydrolysis of ester. Now you have this second part here, it is acid catalyzed. This reaction can happen in the presence of acid. In that case, this is called an acid catalyzed reaction. However, for your information, this reaction also proceeds very well in the presence of a base. In that case, this reaction will be called what? It will be called base catalyzed hydrolysis of ester. So in our experiment, which type of reaction we are going to study? Acid catalyzed. Acid catalyzed. So obviously I will not be taking a base, I will be taking an ester, water and acid. The product of this reaction is, can somebody tell me? CH3COH. COOH. You get an acid and you get an alcohol. This reaction is called hydrolysis of ester, irrespective of whether it is acid catalyzed or base catalyzed. Hydrolysis of ester gives you carboxylic acid and alcohol. Now you're going to conduct this experiment in the presence of an acid. Obviously that doesn't change the reactant and the product. Your product is still going to be an acid and alcohol. So the aim of the experiment is to study the acid catalyzed hydrolysis of ester. You can take methyl acetate, you can take ethyl acetate, it really doesn't make a difference. And you have to, by the end of it, you have to determine the rate constant of this reaction. Rate constant. Is this okay? So if you directly skip and go to the end, I'll keep going, moving back and forth. You will see that, right. The result that you're going to report is, रिजल्ट क्या बताएंगे आप? कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. हमने वही निकाला था ना, एम क्या था, हमको क्या निकालना था? रेट कांस्टेंट निकालना था. सो योर result table will be the rate constant of this reaction, acid catalyzed reaction would be, अभी आपके पास rate constant निकालने के 3 तरीके होंगे. एक कैलकुलेशन से, और आप 2 ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ से. So you will report 3 things here. They will not be exactly identical, but they should be very similar to each other. The number should be close enough. Is okay? यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No. Good. Now let me explain हम लोग experiment में करेंगे क्या. Then I will read this or somebody will read this. Experiment में आप क्या करेंगे? Experiment में हमें क्या क्या लगने वाले हैं आप बताओ. What are you going to need? हमारे reactants क्या क्या है बताओ.
Ester, water, Yeast. and I have. acid. I need ester. I need water, and I need Acid. acid. In this case, for this experiment, I am going to take HCl. So हम लोग क्या करेंगे? पहले आप 5 ml ईस्टर लेंगे. कितना ml? 5 ml. 5 ml. 5 ml of ester. And you will take 100 ml of HCl. The 5 ml ester and 100 ml क्या? HCl. HCl. अब आप बोलेंगे आपने तो पानी तो लिया नहीं. पानी कहाँ है फिर? Have you taken water or you have skipped water? Please remember, HCl means lots of water and very little HCl. तो जब आप 100 ml HCl ले रहे हैं तो basically you are taking lots of Water. water. So even though you will read that you have taken 5 ml of ester and 100 ml of HCl, तो पानी का कहीं जिक्र है नहीं. But if we know that how HCl is prepared, HCl is basically a gas. एट रूम टेम्परेचर HCl इज अ गैस. तो HCl जो सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं? पानी में HCl गैस को डिसॉल्व करते हैं. तो जब आप बोलते हैं कि एक आपने 100 ml HCl लिया, उसमें पानी है कि नहीं है? Yeah. ढेर सारा पानी है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग वाटर अलग से. इज दिस ओके? Yes, sir. Okay, so first of all, you will take 5 ml of ester, 100 ml of HCl, and you will keep this in a water bath. Now, the reason you keep this in a water bath is this rate constant जो आप K निकालने वाले, K depends on temperature. तो अगर इसका टेम्परेचर अलग हुआ, इसका टेम्परेचर अलग हुआ, तो उसका जो K निकलेगा वो कौन से टेम्परेचर का होगा? आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते. That's why what you need to do is you need to perform this entire experiment at one temperature. इसलिए देखो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टेबल में, if you see here, टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ नोट किया कि नहीं किया? Doesn't matter, you don't need to know this temperature kitna hai, because you are not going to use this temperature for any calculation, but you need to make sure that everything is maintained at the same temperature. So let me repeat this. You have taken in a bottle, you have taken 5 ml of ester. In another bottle, you have taken 10 ml, 100 ml of HCl. Then you will keep this for a good amount of time, something like 10 minutes वगैरह रखेंगे, ताकि the solution inside has attained the temperature of the water bath. Now you have two different reactants at the same temperature, correct? Yes. Yes. Now you're going to mix them. अभी हमारे पास मिक्स करने के दो तरीके हैं, क्योंकि या तो मैं ईस्टर को पानी में HCl में डाल सकता हूं, या फिर HCl को ईस्टर में डाल सकता हूं. दोनों मिक्सिंग होगा ना बेटा? Yes. Keep this in mind, the mixing is always HCl into ester, never the other way around. अब आप बोलेंगे कि ये कौन सा नया चक्कर है, मिक्स तो मिक्स है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. फर्क क्या पड़ता है मैं आपको ये बताता हूं. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. इफ यू लेट्स से, इफ यू हैव, यहाँ पे ईस्टर कितना है? 5 ml. 5 ml. अगर आपने यहां मिक्स किया, और जब आप, नाउ दिस इज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन योर लैब, दिस इज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन योर किचन, जब आप एक बॉटल से जब ये कुछ ट्रांसफर करते हैं, क्या आप सारे के सारे चीज ट्रांसफर करते हो? नो. नो. हमेशा कुछ ड्रॉप रह जाता है. तो इसका मतलब है, because you have taken 5 ml of ester, if you are going to transfer this here, probably you are going to add something like 4.8 or 4.9 ml, right? Yes. Now, लेकिन अब आप बोलेंगे कि जब मैं यहां से 100 ml डालूंगा,
यहाँ भी तो वही कहानी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 100 ml डाला तो कैन यू ट्रांसफर द होल ऑफ 100 ml? No. No. नो। लेकिन वहां पे भी वही प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन फिर हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि ऐसा करना है, वैसा क्यों नहीं करना है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट। दिस माई 5 ml। So 5 ml is what? Easter. Ester, and you have this is 100 ml. दिस इज एसिड। देखिए 5 ml से जब इसमें ऐड करूंगा, सपोज एक 0.1 ml रह गया, यानी आपने कितना ऐड किया? 4.9. 4.9. 4.9. ओके, यहां से आपने 100 से यहाँ ऐड किया, यहाँ पे भी 0.1 ml ही रह जाएगा, तो बचा कितना? 99.9. 99.9. You see, if you can transfer 99.9.9 out of 100, and if you can transfer 4.9 out of 5, the percentage of error is much less here. If you calculate percentage error, किस में error ज्यादा होगा? Easter. Easter. अगर आप एस्टर ट्रांसफर करेंगे, the amount of error that you are going to introduce to your experiment will be much larger compared to when you transfer. HCl to Easter. HCl. Is this clear? हम लोग Yes. कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. So let me repeat. I am going to repeat lots of things क्योंकि ये आप unfortunately you are going to imagine this experiment, so imagination requires repetition. आपने 2 बॉटल लिए, दोनों बॉटल में क्या क्या लिया? Easter and HCl. Easter. 5 ml एस्टर और 100 ml। HCl. HCl. उसके बाद आपने क्या किया? उनको वाटर बाथ में रखा। वाटर बाथ में रखा। कितने देर रखा? 10 minutes. 10 मिनट वाला कहानी नहीं है, आपने 15 मिनट रखा तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा लेकिन एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा होगा। Yes. What is the aim of putting it in the water bath? To make sure both are at the same temperature. Correct. Now having assured that आपके दोनों bottles एक टेम्परेचर पे आ गए, now you're going to mix it. How do we mix it? We put acid Yes, into the sir. Easter. Correct. ये देखो, now let me just see. हाँ ये देखो, your book has this part. Can somebody read this for me? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक. Add 100 ml of HCl into 5 ml of acid, methyl acetate. They've also said the same thing. They just didn't tell you why you have to do this. But now you understand why you have to do this, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. तो मैं अब ऊपर से जा रहा हूँ. So you take 5 ml of, see, you are taking exactly 5 ml. उसमें से अगर आपने डालते समय कुछ गलत हो गया तो इस exactly 5 ml का क्या मतलब रह गया? So you take 5 ml of ester, 100 ml of acid in another bottle, place these bottles in a thermostat or water bath for about 5 to 10 minutes. ज़्यादा रखा तो अच्छा है. Record the temperature of water. This is not going to be used for the calculation. It just make sure that हमारे experiment के दौरान तुम्हारा temperature change ना हो. Okay. आप क्या कर सकते हो? During the time your water bath में thermal equilibrium is being attained, you set up a burette. You take a burette and you fill it with 0.1 molar NaOH solution. उसको आप zero adjustment करो, lower meniscus zero adjustment वगैरह ये आपको आता है. And आप एक conical flask लेंगे, उसमें now you have to take pieces of ice. This actually has, I'll tell you, this has no meaning, and you have to add 2-3 drops of phenolphthalein. तो अभी let me just, आपने अभी तक क्या क्या किया मैं समराइज करता हूं. आपने 2 बॉटल लिए, एक बॉटल में 5 ml मिथाइल एसीटेट लिया, एस्टर लिया, एक बॉटल में आपने 100 ml HCl लिया. दोनों बॉटल को आपने थर्मोस्टेट में रख दिया ताकि 10-15 मिनट के लिए, ताकि वो एक टेम्परेचर पे आ जाए. रख देने के बाद आपके पास कुछ काम है नहीं तो आपने क्या किया, एक ब्यूरेट खड़ा किया. ब्यूरेट में आपने 0.1 मोलर NaOH भरा, उसको जीरो लेवल पे, जीरो रीडिंग पे एग्जैक्टली मार्क किया. एंड वो खत्म करने के बाद यू हैव टेकन अ कोनिकल फ्लास्क जिसमें आपने कुछ आइस डाले एंड उसमें आपने
कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालें. नाउ यू हैव रीच्ड स्टेप 4. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. आई विल No. एक्सप्लेन आइस क्यों डाल रहे हैं, फिनोल्फथालीन क्यों डाल रहे हैं इन अ बिट. बट अभी तक आपने क्या किया, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Then as soon as you add means what? As soon as you mix, sorry, add is not the right word. Mix is the right word. As soon as you mix यानी क्या? Reaction. आप मिक्स यानी किसको किसको मिक्स करेंगे? Acid or ester. Acid into ester ना? Yes. Yes. You start your time stopwatch, that is your zero time. ओके okay? तो अभी आपने क्या किया, देखो आपके पास ये 2 बॉटल है. देखो अभी तुम्हारे पास क्या क्या है मैं बताता हूँ. ये 2 बॉटल है, ये वाटर बाथ है, उसके बाद ये ब्यूरेट है. ब्यूरेट भरा हुआ है किससे? 0.4 एनिवेज से. normal and हाँ. 1. देन यू हैव अ कॉनिकल फ्लास्क जिसमें आपने आइस डाले हुए हैं, जिसमें आपने फिनोल्फथालीन भी डाले हुए हैं. ये आप तैयार है. नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट. देन दिस इज एस्टर, दिस इज एसिड. देन आप क्या करेंगे, यू गोइंग टू ऐड दिस इनटू दिस. और ये जैसे डाला, आपके पास स्टॉप वॉच है, यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच. योर मीटर स्टार्ट्स नाउ. दिस इज जीरो टाइम. ओके. Yes. आपने इसको मिक्स किया, उसको इस बॉटल को उठा के थोड़ा सा हिलाया. मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे आपके पास यू विल हैव अ एक पिपेट भी आप तैयार रखेंगे 5 ml का. एज सुन एज यू डू दिस, आप इसमें से क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर में से 5 ml पिपेट आउट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर. एंड दिस pipette will be put into this conical flask which already has ice and phenolphthalein in ice and phenolphthalein. तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा ये कलरलेस होगा. देन यू विल स्टार्ट titrating. Your end point will be when this colorless solution turns pink. That's your. Now that number whatever you get is going to go here. Initial reading of the reaction mixture, something ml of 0.1 molar NaOH is okay. ये जो भी नंबर है, I am going to denote this as T0. Let's suppose for the time being this number is 24.1. इसका मतलब क्या हुआ, लेट 0.1 क्यों करना है, आसान सा नंबर करते हैं, 20 करते हैं. So what this means is as soon as you added the solution mixture, mix the reaction mixture, आपने टाइम शुरू किया, उसमें से आपने 5 ml पिपेट आउट किया, उसको आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला. कोनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी आइस था, कोनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी फिनोल्फथालीन था. आपका कोनिकल फ्लास्क में ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर है उसका कलर कलरलेस होगा. उसके बाद आपका जो ब्यूरेट जो आपका 0 ml में भरा हुआ था, 0 एडजस्टेड था, उसमें से आप टाइट्रेशन करेंगे. टाइट्रेशन के एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, कब आएगा, कौन से कलर में, pink. पिंक में. एंड लेट्स अज्यूम दैट पिंक occurs at 20 ml. So I will write this that for the reaction mixture the initial reading is 20 ml. Is this clear? Yes. Yes, sir. Okay. Now the question arises, हमने आइस क्यों डाला? Now see, I am assuming ये जो भी रीडिंग है कौन से टाइम पे है, जीरो टाइम पे ना. लेकिन जीरो टाइम है क्या सचमुच? क्योंकि तुमने मिक्स किया वो तुम्हारा जीरो टाइम था, उसके बाद तुमने पिपेट आउट किया वो, उसको भी कुछ सेकंड लगे होंगे. Yes. उसके बाद उसको तुमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया, उसमें भी कुछ और सेकंड लगे होंगे. उसके बाद आपने उसको टाइट्रेशन किया, उसमें तो आपको आधा 1 मिनट लगा होगा. सो इज दिस टाइम द रियली zero time or it is a reading after let's say about a minute? Please remember your zero time is as soon as you had mixed the solution, that is your zero time.
तो आपको जो रीडिंग मिला उसमें देर इज एटलीस्ट अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 मिनट, करेक्ट? Yes, sir. तो आपका जो रीडिंग आएगा इट शुड इट बी एक्चुअली T0 और इट शुड बी T1? T0 मिनट और T1 मिनट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? T1. T1 मिनट होना चाहिए ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डज एनीबडी नो व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आई डोंट नीड यू टू टेल मी what equation is. I need you to tell me what information Arrhenius equation gives you. किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करो। Activation energy. ओके, आर्हेनियस इक्वेशन ये बताता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट बढ़ता है। आर्हेनियस इक्वेशन आपको क्या बताता है? आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा. बढ़ेगा, यानी आपने हीट किया तो टेम्परेचर, जैसे आप हीट करेंगे तो एक्चुअली टेम्परेचर जो है आपका रिएक्शन जो है फास्ट होने लगेगा। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर कम करो तो रेट कम हो जाएगा. स्लो हो जाएगा। इज दिस ऑलराइट? यहां तक ठीक है? Yes, sir. तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने आइस डाला, दैट्स व्हाई रिमेंबर हम लोग ने वाटर बाथ में क्यों डाला था? रिमेंबर वाटर बाथ में क्यों डाला था हमने? टेम्परेचर सेम है दोनों का। क्योंकि अगर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर जो है बढ़े और घट जाए तो तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट है वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग होता है। अलग रहेगा। यू डोंट वांट दैट, दैट्स व्हाई वी डू एवरीथिंग इन द वाटर बाथ। नाउ आपने क्या किया, मिक्स किया, यहां से पिपेट आउट किया एंड उसको आपने एक फ्लास्क में डाला, जिसमें फ्लास्क में क्या है? आइस एंड फिनोल्फथालीन। आइस है। आइस Ice का and phenolphthalein. फिनोल्फथालीन का कहानी बाद में है। आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 degree. So basically what you are doing is you are putting a solution which is about 25 degree and अचानक उसको आप एक conical flask में डाल रहे हैं, you are putting it in a system where the temperature is maintained at 0 degree. तो अचानक से ठंडा हो गया, हाँ. ठंडा हो गया नहीं, उसका रेट क्या हो Yes. गया होगा? रेट अचानक से क्या हो गया होगा? कम हो गया. बहुत कम हो गया। Slow. कम नहीं, बहुत कम हो गया होगा। इतना कम हो गया होगा कि we say that we have frozen the reaction. मतलब क्या? रोक we have दिया। stopped we have Stop stopped the the reaction. reaction. That's why, हालांकि मैंने T0 जो है मेरा, जैसे मिक्सचर में मिक्स किया तो वैसे मेरा T0 शुरू हो गया था, बट सी एज सुन एज आई पुट, मैंने यहाँ से पिपेट आउट किया, उसमें जो टाइम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पिपेट में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बट एज सुन एज यू पुट दिस 5 ml ऑफ सोल्यूशन इनटू योर कोनिकल फ्लास्क, इट इज एज इफ योर टाइम हैज स्टॉप्ड। तो उसके बाद आपने जो टाइट्रेशन में 1 मिनट लगाया या 1.5 मिनट लगाया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज योर रिएक्शन हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग फॉर दैट टाइम। इज दिस क्लियर? यस Yes, So, sir. is it clear why you have added ice here? यस सर। Okay. हम लोग फिनोल्फथालीन इसलिए डालते हैं, फिनोल्फथालीन टेल्स यू द एंड पॉइंट बिटवीन एसिड एंड बेस। फिनोल्फथालीन नहीं होता था आपका, जो पिंक और जो कलरलेस होता था ना, वो नहीं आता था। सो फिनोल्फथालीन इज द इंडिकेटर। सो इज दिस क्लियर टिल नाउ व्हाट यू हैव डन? यस सर। Yes, sir. आपने मिक्स किए, उससे पहले का मैं 2-3 बार बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। आपने मिक्स किए, जैसे मिक्स किया आपने टेम्परेचर, आपने स्टॉप वॉच ऑन किया, आपका 0 टाइम शुरू हो गया, आपने उसमें से 5 ml निकाले, उसको एक फ्लास्क में डाले, फ्लास्क में आपका आइस था, उसमें फिनोल्फथालीन था, और उसको आपने टाइट्रेट किए विथ NaOH, एंड आपने जो रीडिंग आया उसको क्या लिखा आपने? T1 T0। T0 सर। ठीक है, ये रीडिंग आ गया। Yes, sir. ओके। टी इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप जैसे आपने ये रिएक्शन किया,
हम लोग लैब में आमतौर पे क्या करते हैं, आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग रख के जाओ, कल आके टाइट्रेशन कर लेना. Yani if you have the practical on, let's say, on a Tuesday, after having completed all the other readings, I'll ask you to keep that reaction mixture somewhere in a cupboard, and you will come tomorrow and take a reading. कल तक क्या हो चुका होगा? Reaction complete. रिएक्शन कंप्लीट होगा. तो जो रीडिंग आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? T Infinity. 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 दिस इज वन वे. लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होता है, रेट क्या हो जाता है? बढ़ता है. बढ़ता बढ़ता है. है. तो आपकी किताब में ऐसे ये दिया होगा, देखो यहाँ पे दिस पार्ट इज देयर. आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द रिएक्शन, आप क्या करेंगे? यू हीट दिस अबाउट 60 to 70 डिग्रीज एंड यू हीट इट फॉर अबाउट एन आवर. तो इससे क्या हो रहा है? आपने इतने देर हीट किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. फास्ट हो जाएगा. तो जो रिएक्शन जो आप रूम टेम्परेचर में जो एक दिन में कंप्लीट हो रहा था 60-70 डिग्री में, वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. यस. उसके बाद आप उसको ठंडा करके अगर आप उसका रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग कौन सा रीडिंग होगा? T infinity. T infinity. Now you have been given T naught, T infinity. You have been given the temperature. Temperature आपको नहीं भी दिया तो चलता है, because you are not going to use that experiment. That calculation में है नहीं. Can you calculate small a now? ये दिया है. Let's say, just for explanation purpose, let's say this is 50. Please remember, this will not be 50, this will be 100. तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50. 50. It will be this minus this. Okay, 50 सब 50 आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको 40 करते हैं, इसको 100 करते हैं. So what will be a? 60. 60. ठीक है, 60 ml. एंड आप log a भी निकालेंगे, तो आप किसका log निकालेंगे? Log 60. log 60 निकालेंगे. आपको log कैलकुलेटर है, log निकालना आता है, वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ तक ठीक है? एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो Okay. अगला, अभी आप क्या करेंगे? आपका रीडिंग हो चुका है, आप उस जो आपके फ्लास्क में है उसको फेंक देंगे. उसके बाद आपका जो ब्यूरेट है वो तो अभी 0 पे है, कि ब्यूरेट 0 पे कि 0 पे नहीं है? अभी नहीं है, 0. नहीं है. आप उसको दोबारा 0 पे भरेंगे. उसके बाद 10 मिनट बाद आपके जो सॉल्यूशन मिक्सचर है उसमें से दोबारा 5 ml एमिट आप निकालेंगे, उसको एक फ्लास्क में डालेंगे, जिस फ्लास्क में आपके पास ऑलरेडी आपने क्या डाल रखा है? फ्लास्क में क्या है Ice क्या है and आपका? phenolphthalein indicator. आइस एंड फिनोल्फथालीन है, उसमें आप डालेंगे. और आपका ब्यूरेट रीडिंग तो ऑब्वियसली अभी तक 0 हो चुका है. आप उसको दोबारा टाइट्रेशन करेंगे, उसमें से जो नंबर आएगा वो किधर जाएगा? 10 के सामने. तो आप ऐसे करके ये नंबर भर सकते हैं. यस. Yes, sir. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. ये 6 रीडिंग लेने में कोई मतलब नहीं, 5 रीडिंग बहुत काफी है, यहां तक ये खत्म करेंगे. तो ये भर चुका है. नाउ यू टेल मी, अगला कॉलम आप कैसे भरेंगे? बोलो. नाउ लेट मी जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट टेल यू. हम लोग क्या करेंगे? लेट्स से दिस वाज 40, करेक्ट. मैं जस्ट एक नंबर बता रहा हूं, तो आप लोगों को कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो. एंड लेट्स से दिस नंबर इज 100. प्लीज रिमेंबर, दीज नंबर्स आर नॉट गोइंग टू बी 40 एंड 100. बाद में आप बोलेंगे सर नहीं तो मुझे 60 करके जर्नल सबमिट करेंगे, वो मार्क्स नहीं मिलेगा. यहाँ पे नंबर क्या होगा? 60. 60. अगेन, इन योर जर्नल दिस नंबर विल बी 60 और समथिंग एल्स. समथिंग एल्स. हाँ, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत होशियार लोग हो, बाद में 60 लेके मुझे दे देंगे और मुझे ही बोलेंगे सर आपने बोला था. सो आई हैव दिस रिकॉर्ड. मेरे पास भी ये रिकॉर्डेड मैसेज है कि मैंने बोला है कि 60 नहीं है. ओके ओके. कोई लॉग ही कैलकुलेट करेगा मेरे लिए कैलकुलेटर से? जस्ट एक नंबर बता दो सब, सो दैट वी जस्ट कंप्लीट दिस कैलकुलेशन. 1.7781. 1.7 781.
Okay. Okay. Suppose after 10 ml, this number comes to be 41. Now I am going to do only for one. बाकी एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे आप लोग. ठीक है. ये 41 होता है, ये नंबर क्या आएगा बताओ मुझे. 1. ये 1. 1 आएगा. ये आपने क्या किया, इससे इसको माइनस किया. ये नंबर कैसे आएगा. Nineteen. 19. It is a minus x. This should be not capital X, this should be small x. A is here, x is here. So what would be a minus x? This minus this. तो यहां पे क्या लिखूं मैं. What should I write here? 59. 59. Yes. a आपका 60 है, x आपका 1 है. So 59. हाँ, so it will be 59. करेक्ट. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है. No, sir. इसका लॉग निकालो. चलो लॉग निकाल के बताओ मुझे. इसका लॉग निकालना है. 1.7708. 7708. Now you're going to calculate this rate constant. Now let me show you. The formula for rate constant is k is equal to 2.303 by t log of a by a minus x. ओके. तो एक्चुअली तुम लोग चाहो तो यहाँ पे और एक कॉलम बना लो. log ऑफ a बाई ए माइनस एक्स का एक कॉलम बना लो. a बाई ए माइनस एक्स कैसे निकालेंगे. a कहाँ पे है. Where is your a? So temperature of water bath. नहीं नहीं नहीं, a राजा a 60. 60. a 60. a माइनस एक्स क्या है. 59. 59. तो आप क्या करो, मेरे साथ करो. 60 डिवाइडेड बाय 59 करो. 1 पॉइंट कुछ आएगा. 1.0169. उसका लॉग निकालो. log 10 है, नॉट ln. log कितना आया. 0.0072. 0.0072. now this is not rate constant, this is log a by a minus x. उसके बाद rate constant कैसे निकालेंगे देखो. log of this is this value, multiply this by 2.303 and divided by the time 10. तो ये के बता दो कितना आता है. आरजू आप क्या करेंगे. आरजू ही है ना, किसके पास कैलकुलेटर है. Yes, sir. बाकी सबके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए. देखो करेंगे तो आपका ही फायदा है. मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2.303 एंड डिवाइडेड बाय 10. कितना आया. 0.0016. 10⁻² में बोलो ना बेटा. 1.6. 1.6. 1.6 into 10 raised to minus एक आध और नंबर बताओ. 6 3. 3 3 इंटू 10⁻³ minus 3. -3 पर मिनट, क्योंकि ये मैंने मिनट में लिया है तो ये पर मिनट आएगा. इज दिस कैलकुलेशन क्लियर. मैंने ये कैलकुलेशन पूरा दिखाया है. देखो किसी को डाउट है तो अभी पूछो. No, sir. ओके. तो अगला जो 20 है, मैं जस्ट ये थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा. अब 20 का है सपोज 42. ए माइनस एक्स क्या होगा. 2. कुछ तो नंबर आएगा. आप ये नंबर भर सकते हो. ये नंबर भर सकते हो. Yes. ये नंबर भर सकते हो. यहाँ पे जो आप के निकालेंगे, प्लीज रिमेंबर नाउ, this number multiplied by 2.303, now it will be divided by 20, not
क्योंकि यहां पे जो आएगा वो 20 के बराबर पे है ना। इज दिस क्लियर अभी तक? किसी को डाउट है? Yes. No, sir. No doubt. तो अभी आप अगर आपके पास 5 रीडिंग्स है, कैन यू फाइंड आउट 5 केस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इन सब का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं? इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। दैट विल गो एज यहां पे इन योर रिजल्ट टेबल बाय कैलकुलेशन। वो नंबर यहां पे आएगा, एक नंबर। ऑलराइट? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, नाउ हाउ टू डू द ग्राफ। अभी आप ग्राफ, ओके ये सब हम लोग कर चुके हैं। आप एक ग्राफ बनाएंगे log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस t। इफ यू सी इट इज दिस कॉलम वर्सेस दिस कॉलम। सो आप क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस में यू विल गिव टाइम, तो आपका 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका टाइम है। 10, 20, 30। आपको वाई एक्सिस में क्या है? Log A minus X. लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। और ये आप देखेंगे कि ये एक्चुअली डिक्रीज होते जाते हैं, ऐसा कुछ तो होगा। देन यू विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्लोप निकालना आता है सबको? Yes. ओके, जिसको नहीं आता है उनको मैं बता रहा हूं क्या करेंगे आप। एक बार लाइन खींचने के बाद आप कोई 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे। आई विल डिफाइन एनी 2 पॉइंट। इट्स अप टू यू, एवरीबॉडी विल डिफाइन देयर ओन पॉइंट्स। कोई तो 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे। इसका एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से आप ऐसे नीचे जाएंगे तो इसका एक्स वैल्यू ये होगा, यहां से ऐसे जाएगा तो इसका वाई वैल्यू होगा। वॉट एवर दैट नंबर इज, let's say this is 5 and let's say this is 10. I will say that 5 is my x1, 10 is my y1, and I'll define another point. It's up to you what point you define. I'll find out iska x, let's say this is 20, and iska y is let's say पता नहीं 10 या 5. So this will be 20 and 5. So 20 is called x2 and 5 is Y2. y2। अभी आप स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें y1 y2 x1 x2 दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, वो ध्यान से रखो। इसमें से स्लोप निकलेगा। निकल गया अभी स्लोप? Yes. ओके, नाउ फ्रॉम ग्राफ 1 आप क्या करेंगे, आपका जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप आएगा, multiplied by minus 2.303, and whatever answer comes that is a rate constant from graph 1। ये आएगा आपके यहां पे। एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके, दूसरा ग्राफ आप क्या बनाएंगे? देखो ये एक्चुअली आपको लग ही रहा है, तो आपको वो टेबल जो है बनाना चाहिए। दिस एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा होना चाहिए, आप लोग ये कर लो। दिस शुड बी एन ब्रैकेट, अ ब्रैकेट हियर, अ ब्रैकेट हियर। इट इज द लॉग ऑफ द एंटायर थिंग, जो कि हमने बनाने के लिए बोला था ना। आप लोग बना ही लो वो, क्योंकि ग्राफ में भी लग रहा है। मैंने यहाँ पे कौन सा टेबल ऐड करने के लिए बोला था? Log of A Log upon of A. A upon minus X. क्योंकि ये नाउ यू कैन सी दैट ये आपको ग्राफ के लिए भी लग ही रहा है, तो आप लोग ये बना ही लो। लास्ट कॉलम क्या आएगा अभी? Rate Rate constant constant. K. के। दिस विल गो हियर। नाउ द सेकेंड ग्राफ इज यू गोइंग टू प्लॉट दिस वर्सेस दिस। एक्स एक्सिस में अगेन आपके पास टाइम होगा, वाई एक्सिस में आपके पास होगा लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपके पास ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे पॉइंट्स आएंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अगेन आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। Yes, sir. उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो you multiply the slope by 2.303 and you will get the rate constant. So finally you will report your result as rate constant by calculation। ये कहां से आएगा? मीन निकाल के पहले के मीन निकाल के। ग्राफ 1 का कहां से आएगा? इट विल बी फ्रॉम दी पहले ग्राफ से। पहले ग्राफ से।
ग्राफ 2 से जो आएगा सेकेंड टर्म सेकेंड इसमें आएगा. Okay, is there anything that you don't understand? No, sir. I am miss. This is the best I can do. I cannot make you perform the experiments, but